Morning to all of you. I am ANSHUL Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss about the control and coordination in plants. In this chapter we have discussed about the control and coordination in animals, and हमें पता चल गया कि animals control and coordinate with the help of nervous system and muscles. Now we are going to discuss how plant control and coordinate different activities in their body. But before we have to understand the meaning of coordination. The coordination is the ability of a plant to use different part of its body together smoothly and efficiently. कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ यूज़ करता है ताकि वो पार्ट्स स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर पाएँ. हियर यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट हैव डिफरेंट पार्ट. इट हैव रूट, इट हैव स्टेम, लीव्स, flowers and fruits. Flowers are responsible for reproduction, fruits are there for the storage of food, leaves are there for the synthesis of food by photosynthesis, and roots are there for the absorption of nutrient and water from the soil. Let's take two example of two part of the plant, leaf and the root. Leaf are responsible for the performance of photosynthesis, formation of food, and roots are responsible for the getting nutrient and water from the soil and provided to the leaf. So leaf provide food to the root and root provide nutrient and water to the leaf. If these two organs don't work simultaneously, अगर ये दो ऑर्गन एक साथ काम ना करें तो क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? The answer is no. That means the activity of leaf and the activity of root must be coordinated, and this process is called coordination. Now let's see, there are some differences between plants and animal. और जो सबसे पहला डिफरेंस हमारे दिमाग में आता है, द प्लांट डोंट लोकोमोट. प्लांट लोकोमोट नहीं करते हैं एंड एनिमल्स परफॉर्म लोकोमोशन. वी विल डिस्कस इज अबाउट लेटर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, चलो प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं बट प्लांट में नर्वस सिस्टम और मसल तो नहीं है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देन हाउ दे परफॉर्म द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? सो आंसर इज प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स. प्लांट की जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स के थ्रू ये काम होता है बट प्लांट्स में ये काम होता है केमिकल के थ्रू. And this chemical communication is responsible for the control and coordination in the plant body, and the chemicals that are released during the chemical communication, they are called plant hormones or phytohormones. Phyto means plant, hormones means hormones. So plant के hormones को हम phytohormones भी बोलते हैं. Now comes to that thing जो हमने अभी डिस्कस कर दी, plant do not perform locomotion, but इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होते. हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरह के मूवमेंट प्लांट में. आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट का, टच करते उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं. आपने देखा होगा जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो उसका जो शूट है हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्राउंड में मूव करता है. सो यस, प्लांट शोज मूवमेंट. आपने बहुत सारे प्लांट ऐसे भी देखे होंगे जिनके फूल सुबह के समय खिल जाते हैं और रात के समय फूल बंद हो जाते हैं. सो however plant do not locomote but they shows movements. plants movements को show करते हैं. In these two types of movement you can see the closing of leaf of touch me not plant do not involve any growth, and the movement of shoot towards the air and movement of root towards the soil involve growth. So in the plant the movements are of variety, but these movements can be grouped into two broader categories. The first is the growth dependent movement, they are also known as tropic movement, and the second is non growth dependent movement, or they are also known as nastic movements. So the movement that depends on growth, for example the movement of shoot towards the air and the movement of roots towards the soil, they are directional movement. ये मूवमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और किस डायरेक्शन में होंगे? जिस डायरेक्शन से इन्हें स्टिमुली मिलेगा. फॉर सपोज फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट, फॉर द ग्रोथ ऑफ शूट द स्टिमुली इज लाइट. तो जिस डायरेक्शन से लाइट मिलेगी शूट उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. लाइट इधर से मिलेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लाइट इधर से मिलेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर से मिलेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सिमिलरली रूट को ग्रेविटी जिस डायरेक्शन से मिलेगी उसी डायरेक्शन में रूट ग्रो करेगा, दैट मीन्स मूव करेगा. अगर इधर से मिलेगी तो इस डायरेक्शन में, इधर से मिलेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट because they are moving in a particular direction towards the direction of stimuli. That is why these movement depends on the direction of stimuli. They are directional movement. On the other hand, the closing of leaf of mimosa plant, इस प्लांट में या टच मी नॉट प्लांट की जो पत्तियों के बंद होने की प्रोसेस है, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट.
डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। किसी भी जगह पे प्लांट को आप टच करोगे पत्तियां बंद हो जाएंगी, दैट मीन्स किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस मिले पत्तियां बंद होने का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स दे आर द मूवमेंट दैट डोंट depends on the direction of stimuli, they don't depend on the growth, that is they are non-growth dependent, they don't depends on the direction of stimuli, they are non-directional movement and they are also called nastic movement. Now let's discuss the nastic movement in detail. These movements are non-directional, किसी particular direction में नहीं होते, they do not depend on the direction of stimuli, किसी भी direction से stimuli मिले इस बात का इनके movement के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, and they don't depend on the growth also. Now the question arises, in the case of animal, the animal moves with the help of muscles and muscles move with the help of change in shape of the muscle by the contraction of muscle, but there in plant there is no muscles, then how they move? तो move तो change in shape की of cell की वजह से ही होगा, तो यहाँ पे muscle तो है नहीं, then how the plant cells shape change their shape, कैसे अपनी shape को change करते हैं? They change their shape by the entry and exit of water. जब किसी प्लांट सेल के अंदर वाटर पहुंच जाता है, प्लांट सेल स्वेलअप हो जाती है तो हम बोलते हैं वो टर्गिट हो गई है, एंड जब किसी प्लांट सेल से वाटर बाहर निकल जाता है, वो पिचक जाती है, हम बोलते हैं प्लांट सेल फ्लैकिड हो गई है। सो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये हम मिमोसा प्लांट का मैग्नीफाइड डायग्राम है, यहाँ आप देख रहे हो एक पत्ती और पत्ती का लीफ स्टॉक है, इसके बेस पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, अगर उन सेल्स के अंदर पानी है दैट मीन्स वो टर्गिट है, तो पत्ती एक तरीके से रिजिड रहेगी और खुली रहेगी, बट व्हेन वी टच द प्लांट, जैसे हम प्लांट को टच करते हैं तुरंत पत्तियों की सेल से पानी बाहर निकल जाता है, पत्तियों की सेल्स छोटी हो जाती हैं साइज में, दैट मीन्स दे बिकम श्रिंक एंड ड्यू टू दैट द रिजिडिटी ऑफ द लीफ बेस इज लॉस्ट एंड लीव्स बिकम क्लोज. सो प्लांट सेल्स मूव और द प्लांट ऑर्गन और पार्ट मूव्स विद द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर इन द सेल्स ऑफ प्लांट. The next thing that you can see, wherever we touch the plant को हम कहीं पे भी टच करें तो पत्तियां बंद हो जाती है, दैट मीन्स द साइट ऑफ टच एंड द साइट ऑफ मूवमेंट दे आर डिफरेंट. दैट मीन्स इस जगह पे जब टच हुआ तो वो टच का सिग्नल किसी तरीके से इन पत्तियों तक पहुंचा होगा, एंड दिस सिग्नल इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ केमिकल. जिस पॉइंट पे टच आया उस पॉइंट पे कुछ केमिकल रिलीज हुए और वो केमिकल थ्रू द वेस्कुलर बंडल मूव्स टू द लीव्स और फिर पत्तियां बंद होती हैं. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, दे आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट. किस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रहे हैं या नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो रहे हैं, इस बेस पे नेस्टिक मूवमेंट को 4 कैटेगरी में बांटा है. इफ़ द नेस्टिक मूवमेंट इज अकरिंग इन रेस्पॉन्स ऑफ टच, जैसे मिमोसा में हमने देखा, तो दिस काइंड ऑफ नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन एज सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट. इफ़ द नेस्टिक मूवमेंट्स आर हैपनिंग इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश होने पे फूल का खिल जाना और सूर्य का प्रकाश ना होने के फूल का बंद हो जाना, तो इस तरह के नेस्टिक मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोनेस्टी. अगर मूवमेंट हो रहा है विदाउट ग्रोथ इन रेस्पॉन्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे पत्तियों का बंद हो जाना, बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाने पे पत्तियों का खुल जाना, दिस काइंड ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन एज थर्मोनेस्टिक मूवमेंट. एंड अगर नेस्टिक मूवमेंट हो रहे हैं इन रेस्पॉन्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर सपोज एक आपका जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, अगर उसकी पत्तियों के बीच में कोई इंसेक्ट का कॉन्टैक्ट होता है तो पत्तियां बंद हो जाती हैं. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू द कॉन्टैक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड टिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मूवमेंट in plant that are called nestic movement. We will discuss about the other movements in next video. Thank you very much for watching the video.